बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम my dear students. Hope you all of would be fine by the grace of Almighty Allah. Stay blessed my dear, stay blessed. जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को खुश खुर्रम रखे, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। Okay, so yesterday we discussed about branches of accounting, and before starting our new topic, I would like to give an opportunity to those who really want to participate by writing, or if there is a student who wish to participate through his or her voice, so I will give opportunity. Okay, Fatima Zehra, please, I would request you to please unmute your mic. Yes, sir. Okay, uh, Fatima, please, uh, will you briefly define the branches of accounting? Sure, sir. There are three branches of accounting: the financial accounting, the cost accounting, and the managerial accounting, which is also known as the decision or strategic management. Okay, so what is the purpose of financial accounting? The financial accounting basically provides the information related to the profit and loss of a business for a particular point and for a particular time. Okay, well done, And, very al- good, and it also tells the financial position of the business. very good, excellent. खुश रहिए मेरा बेटा. Okay, thank you, Fatma. Please mute your mic. Okay, Shah Sahab, Shah Salim, please unmute your mic. Okay, what was the second branch of accounting we studied yesterday? The second branch of accounting is cost accounting, in Okay, which we determine the cost of the goods manufactured or produced by the business. okay. So, in which business we produce goods? Do we are we going to study those businesses in our first year or second year SLOs? Yes, Sure. Are you sure? We are going to study about those businesses. Shaz, you remember how many types of business I uh, told you in previous classes? How many types of business? yeah. नहीं याद आ रही? No, sir. ओके, कोई बात नहीं मेरा बेटा. थैंक यू सो मच. जजाकुमुल्लाह. खुश रहिए. नूरुलैन, नूरुलैन, प्लीज अनम्यूट योर माइक. Yes, sir. ओके, मेरा बेटा प्लीज हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की बात हुई, एंड शाज सेड cost accounting is for determining or ascertaining the cost of product or cost of goods which you are going to produce. So I asked a question to her, then are we going to study any business which produce goods in our first year or second year SLO? No, sir. Okay, so which type of business we are going to study in our intermediate program? Um, Sir, can you wait because my internet was issue. I have some issue on my internet. Okay, Nurlan, so you didn't watch the videos I have uploaded? Sir, it was not working on my laptop. So बेटा प्लीज आपको मुझे बताना तो चाहिए.
आप मुझे बताएंगे तो हम उसको मिलके सॉल्व करेंगे ना. But you even don't try to tell me that videos are not working, videos is not. तो प्लीज आप थोड़ा सा मुझे बताया करें, इस तरह तो फायदा नहीं होगा फिर. ओके. जुनेद, प्लीज unmute your mic. Junaid, I request to Junaid, please unmute your mic. Please try to keep your these gadgets in working order. Otherwise, it will create problem. You better understand what I am trying to say. Okay, it's Arman, if I am not wrong. Arman, please unmute your mic. Arman, no. I think Ayan Ali. Ayan Ali, I would like to request, please unmute your mic. Afsa, please wait. Ayan Ali, thank you so much. So what was the third branch of accounting we studied yesterday? Ayan, please. Managerial accounting. Managerial accounting. So why we study managerial accounting? What is the benefit of studying managerial accounting? To make decisions on the according to the situation going on. Okay, very good, well done. So who makes the decision of the business? Management. Okay. We accountant provide the information and then See, they excellent, makes excellent. the decision. Yes, you are up to the mark. The senior management, the top management of the firm, the owners take decisions with the help of accounting data, the accounting data provided by managerial accounting. Very well done, Ayan. Thank you so much. So nice of you. Please mute your mic. Okay, so I think we should move to next slide of our today's lecture. Now there is a word profession of accounting. Abdul Moiz, Hafsa, inshallah I will give chance to you in future classes. और मेरी तो अल्लाह से ये दुआ है कि बस जल्दी से ये मामलात ख़त्म हों तो फिर कॉलेज में आए और फिर सब इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करें क्लास में. ओके, सो देयर इज अ वर्ड प्रोफेशन ऑफ अकाउंटिंग. When we talk about profession of accounting, there are two types of professional accountant in market. The first one is performing private accounting. Accountants employed by a business firm or a not-for-profit organization are said to be engaged in private accounting. और आसान लफ्जों में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक बिजनेस या एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि प्रॉफिट ना कमाने के लिए बनाया गया हो. सर ये कैसा जुमला कहा, प्रॉफिट ना कमाने के लिए? ओके, अबीर प्लीज अनम्यूट योर माइक. Sir, NPO, not for profit organization. Well done. So would you like to take a name of any institute in Pakistan? Sir, जैसे कि
सैलानी हो गया, ईदी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, खुश रहो मेरा बेटा, जज़ाकुमुल्लाह, बस खुश रहो, जज़ाकल्लाह, बात मुकम्मल कर दी तुमने मेरी। इसका मतलब है अकाउंटिंग एक बिजनेस के लिए भी होती है और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइक ईदी, सैलानी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट, सारिम बर्नी, एंड देयर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट विच आर वर्किंग not for earning profit, but they are providing social services and they are doing work for the sake of, for the क्या कहना चाहिए आसान लफ्जों में, कि अल्लाह ताला की रजा, कंसेंट ऑफ अलमाइटी अल्लाह, अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हैं वो इदारे, वो लोग, तो वो लोगों की खिदमत करते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो जी जी, अल खिदमत फाउंडेशन, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अकाउंटेंट जो किसी बिजनेस में एम्प्लॉयड, द वर्ड एम्प्लॉयड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्राइवेट अकाउंटिंग। ओके मशहूद, it means you know a lot about non-profit organization. Inshallah, when I will discuss these things, will make sure give you chance. Accountants employed by a business, it means either a business or not for profit organization when hire a person for doing business of that particular business, for performing accounting of that particular business, or for performing accounting of that non-profit organization. It means the person who is doing accounting, who is performing accounting, is engaged in private accounting. बहुत आसान लफ्जों में दो लाइन कह रहा हूं, सुन लीजिएगा। जब आप किसी जगह जॉब करते हैं और आप अपनी अकाउंटिंग की सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन्स यू आर doing private accounting. The second one is accountants and their staff who provide service on a fee basis are said to be employed in public accounting. इसको भी आसान लफ्जों में कह देते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ मिलके या आप इंडिविजुअली, when you get the degree of qualified chartered accountant and you made a firm, you made a business of providing services. Which type of services? Services for income tax, services for sales tax, services for accountancy. It means when you start a business and you provide services to different organizations, but you are not working with them as an employee, it means you are engaged in public accounting. ठीक है, अभी इस पे बात ना की जाए तो बेहतर होगा मेरा बच्चा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन अब देखें आप टॉपिक से हट रहे हैं ना, तो टॉपिक से मत हटिए, जजाकुमुल्लाह, बहुत खुश रहिए, बस टॉपिक पे रहिए। तो प्रोफेशन ऑफ अकाउंटिंग, प्राइवेट अकाउंटिंग और पब्लिक अकाउंटिंग, एमसीक्यूज में ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो प्लीज ट्राई टू कीप रिमेंबर दीज थिंग्स, that what is private accounting. When you serve an organization as an employee, it means you are engaged in private accounting. And when you give services to different parties, different users, different organizations, different businesses as a service provider, it means you are engaged in public accounting. Okay, let's move to the other slide, and now we are going to start accounting cycle. Alhamdulillah. Hafsa, you want to say something? Example? Okay. So example is very much simple. When I perform accounting as an employee in any organization, let's suppose, as I mentioned in my first class, I was working in CNBC Pakistan and I was supposed to do their finance work. So I was engaged in which type of accounting, Hafsa? Hafsa, that was public accounting. I was employee of that organization. I was servant. I was serving. I was giving my services as a servant. Yes, I was performing private accounting. Okay, but
when I left all those organizations and now I decided, suppose if now I decided that I should open my personal consultancy, I should start my business of consultancy regarding accountancy, consultancy related to income tax issues, consultancy related to sales tax issues, consultancy related to business problems. That means now I am not no more employee of any organization. I am doing my personal business, I am doing my own business, and I am giving services to general public. कोई भी मेरे पास आएगा, एक डॉक्टर आएगा, एक इंजीनियर आएगा, एक फैक्ट्री वाला आएगा, एक कोई भी आएगा मेरे पास, एक आम जनरल स्टोर वाला आएगा, वो मुझसे आगे सर्विसेज मेरी मांगेगा, मैं उससे सर्विसेज दूंगा. नाउ आई एम एंगेज इन पब्लिक अकाउंटिंग. ठीक है. हफ्सा सेड सो कंसल्टेंसी इज एन एग्जांपल. यस कह सकती हैं आप बिल्कुल कंसल्टेंसी, और आप क्या, बट कंसल्टेंसी के सूरत में कि आप उनके एम्प्लॉय नहीं है, यानी अगर आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, तो अब आप उनके एम्प्लॉय बन गए, अब आपने उनको हर महीने कंसल्टेंसी देनी है. बट जब आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट ना करें और आपके पास सिंपल एक शख्स आए और बोले भाई मुझे अपने बिजनेस के अकाउंट्स जो है वो अपडेट करवाने, मुझे अपने बिजनेस के अकाउंट्स बनवाने, and you agree for that and you perform services for that particular business and you prepare the reports which the user wants, so in that case you are engaged in public accounting. Hafsa, is it clear? Should I move forward? Okay my dear. So what is accounting cycle? बहुत सारे बच्चे यकीनन अकाउंटिंग साइकिल जानते हैं. मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा क्योंकि जो लोग जानते हैं वो चाहेंगे कि जल्दी से हम आगे बढ़ें. तो मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग साइकिल के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं, वो आप ज़रा नोट कर लीजिएगा. देखिए मैंने आपसे बारहा ये बात कही कि यू शुड नोट दीज पॉइंट्स. ओके फातिमा, आई नो साइंस स्टूडेंट्स, all those students who have science background do not know. मैं बताऊंगा, लेकिन कॉमर्स के भी तो यहाँ बहुत सारे चैंपियंस है ना मेरा बच्चा. तो I am trying my level best to accommodate all of you. सही है. तो okay अब्दुल मोइस, what is accounting cycle? The word cycle, what does it mean? Cycle, a process. सही है. यहाँ पे साइकिल का मतलब वो बाईसाइकिल मत निकालना. यस एग्जैक्टली. सीक्वेंस, कंसिस्टेंसी, द वर्क विच इज गोइंग ऑन कंसिस्टेंटली, द वर्क which follow a particular sequence. Yes, the chain. Very good, excellent, you guys are superb. Sequence of accounting procedures used to record. My dear students, please give attention, please pay your attention here. क्या लिखा है? Sequence of accounting procedures used to record, classify and summarize accounting information. You remember these words? Where we have studied these words? Record, classify and summarize accounting information. Yes, exactly. Rija Ali, excellent, superb, जबरदस्त. जीते रहिए, खुश रहिए. बहुत चैंपियन बच्चे हैं मेरे सारे माशाल्लाह. अच्छा, जो बच्चे समझ नहीं पाते और पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें चाहिए, they need to discuss it with me. मैं उनके लिए कोई एक्स्ट्रा यूनिट रखूं, मैं बात करूंगा. हमारी वाइस प्रिंसिपल बहुत बहुत कोऑपरेटिव हैं माशाल्लाह. मैं उनसे बात करूंगा. अगर वो कहेंगी ठीक है आप साइंस के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रख लिया करें, मैं रख लूंगा. हम इंशाल्लाह इसको कुछ मैनेज करेंगे. बट देखो, अगर आप लोग देखें, अब्दुल मोइज है, फातिमा है, अब मैं इन लोगों को नाम से जानने लगा हूं कि ये लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, है ना. तो आप लोग जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, तारिक आजम साहब हैं, लाइक, ठीक है, जुनेद नहीं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बात समझ में नहीं आया करे तो प्लीज पहले तो अपने माइक्स वगैरह को प्रॉपर कीजिए, ताकि अगर कभी आपको बात करनी हो, आपको अपनी बात मुझ तक पहुंचानी हो, तो आप मुझसे क्लियरली बात कर सकें. हुजैफा भी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने सुना है हुजैफा को. तो
यानी हुज़ैफा से डिस्कशन होती रहती है, जवाब देते हैं माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा ओके ओके, अब देखें, कहता है कि ये फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है, माशाल्लाह आप लोगों ने बता दिया। तो अब मुझे ना जल्दी से याद दिलाएं कि रिकॉर्ड के फंक्शन में हमने क्या चीज बनाना सीखी थी, हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे। देखें, कोई कोई देखे ना, वेरी गुड, एक्सीलेंट तलाल, एक्सीलेंट फातिमा, एक्सीलेंट शहीर, जबरदस्त भाई, सबको माशाल्लाह एक्सीलेंट। मायरा बेटा बुक कीपिंग नहीं मेरा बच्चा, बुक कीपिंग तो रिकॉर्डिंग का अमल का दूसरा नाम है। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। हुजैफा लेजर नहीं मेरा बच्चा, लेजर तो क्लासिफाई वाले स्टेप में है। मेजॉरिटी आंसर दे रही है जर्नल, तो मायरा भी समझ गई, हुजैफा आप समझ गए। अभी नहीं, लेजर इज प्रोसेस्ड, है ना। तो फिर रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड कहां होता है अबीर। अक्सा सेट जर्नल, जर्नल, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही है। रिफा रहीम सेट जर्नल, हफ्सा जर्नल, शाज जर्नल, वेरी गुड। तो आप सब लोग ना बिल्कुल अप टू द मार्क हैं। लेजर फॉर क्लासिफाइंग, इट मींस अकाउंटिंग साइकिल, बेसिकली वो जो अकाउंटिंग के फंक्शन है उसी का नाम है, और हम उसको एक साइकिल की शक्ल में देखना चाहते हैं अब कि भाई वो कौन सा साइकिल है, वो क्या क्या काम है, व्हाट आर द एक्टिविटीज which a business perform during a particular time, during a particular period. So my dear students, sequence of accounting procedures used to record, classify. In classifying stage we make ledgers, and in summarize stage we prepare income statement, balance sheet. As I discussed, income statement, Abir said income statement is profit and loss statement. Balance sheet, about balance sheet we said it is statement of financial position. Yes, okay, excellent. Rija said in summarize phase we also prepare trial balance. Excellent, very well said. Okay, begins with the initial recording of business transaction, the most important thing. Now what begins with the initial recording of business transaction, because in first year we are going to study about business. We will totally focused on business. So what is written here begins with the initial recording of business transaction. Okay, Mehak, well said. Cash flow statement is also part of financial statements. Okay, so begins with the initial recording of business transaction and ends with the preparation of formal financial statements. अकाउंटिंग साइकिल का स्टार्ट भी बता दिया, अकाउंटिंग साइकिल का एंड भी बता दिया. दीज प्रोसीजर्स मस्ट बी रिपीटेड कंटिन्यूअसली टू इनेबल द बिजनेस टू प्रिपेयर न्यू एंड अप टू डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट पीरियोडिक इंटरवल्स. ये पीरियोडिक इंटरवल्स को हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह. आज कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आपको अकाउंटिंग पीरियड के बारे में भी बताएं. ओके, अबीर राइट, bookkeeping, journal, ledger, and trial balance, income statement. Oh, champion, very good. Abdul Mois, step wise. Okay, my dear students, thank you so much for participating in a very, very good manner. So should I move to next slide? Up to now you all are clear. Is there any point where you want clarification? Time to time update the financial statement. Okay, yes, Aksa, I will discuss time to time update inshallah when I will discuss accounting period. Okay, Talal bin Amir said, oh, trial balance. What is trial balance? देखें, बात यह है तलाल कि जब हम ये सब चीजें बनाएंगे ना इंशाल्लाह, यानी जो अकाउंटिंग साइकिल है बेसिकली ये सब प्रैक्टिकल काम है मेरा बच्चा. हमें ये सारे काम करने हैं. हमें जर्नल बनाना है, हमें लेजर बनाना है. वी विल इंशाल्लाह प्रोड्यूस ट्रायल बैलेंस, वी विल मेक एडजस्टिंग एंट्रीज, वी विल मेक income statement, balance sheet, financial statements. So all these functions, all these accounting steps, accounting cycle steps will perform practically. So suppose if we make a level of understanding from 1 to 5, 1 is the lowest level and 5 is the highest level. So if
a student of science background understand today's lecture up to the level of 1 only. I will make sure, inshallah, when we will perform all these activities in a practical manner, when we will make journal, ledgers, trial balance, inshallah, you will mark yourself at 5, because right now you do not even know that what is trial balance. मैं ट्रायल बैलेंस के बारे में कह देता हूं, ट्रायल बैलेंस चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी, चेकिंग ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी, लेकिन अभी तो आपको डेबिट क्रेडिट भी नहीं पता, बहुत सारी बातें नहीं पता। अच्छा, अब होता क्या है, क्योंकि मैं एसएलओ को कोशिश करता हूं कि मैं फॉलो करूं, एसएलओ के मुताबिक चलूं ना चीजों को लेकर, तो कुछ चीजें जो एसएलओ में अगर वो थोड़ा सा पहले लिखी हैं तो कोई बात नहीं, हम उनको पढ़ जरूर रहे हैं, बट इंशाल्लाह हम इसको रिव्यू कर सकते हैं दोबारा और आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। बेटा पेपर आपका, फातिमा बहुत अच्छा सवाल है सर, पेपर में थ्योरी आएगी या प्रैक्टिकल वर्क? मेरा बच्चा पेपर आपका 95%, 95 ज्यादा हो गया, 90%, ठीक है, 90% आपका पेपर प्रैक्टिकल होगा। और अभी आप प्रैक्टिकल काम शुरू तो होने दीजिए, आप इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एंजॉय करेंगे अकाउंटिंग। आप कहेंगे अकाउंटिंग तो मजेदार सब्जेक्ट है, बट वो कहते हैं ना कि बिल्डिंग बनने से पहले वी हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हुई मेरा बच्चा, तो डेफिनेटली बिल्डिंग का क्या हाल होगा, हल्का सा जलजला भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अर्थक्वेक का एक छोटा सा 3 लेवल का भी अगर एक अर्थक्वेक आया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे पता है मैं कॉमर्स वालों का बहुत दिमाग खा रहा हूं, कॉमर्स वाले परेशान भी होंगे कि यार क्या पढ़ाई हुई चीजें बताए जा रहे हैं सर, लेकिन मेरे बच्चों साइंस वालों की भी बेस बनानी है और कॉमर्स वालों को अपनी फ्रीक्वेंसी पे लाना है। हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो आगे हमारे लिए पढ़ना आसान होगा। ओके तारिक, मैं कोशिश करूंगा, मैंने आपका सवाल पढ़ लिया था, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पब्लिक और प्राइवेट अकाउंटिंग के बारे में आखिर में बता दूं। अदरवाइज आप फिर मेरे लेक्चर की वीडियो देखिएगा और उससे अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं आपको उस पर समझा दूंगा, ठीक है, बेफिक्र रहें आप। लेकिन अब मैं चाहता हूं आगे बढ़ूं क्योंकि टाइम बहुत कम रह जाता है हमारे पास, हम बातें बहुत करते हैं। ओके, तो अकाउंटिंग साइकिल, दिस प्रोसीजर मस्ट बी रिपीटेड कंटिन्यूसली, ये हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरे बच्चों अकाउंटिंग साइकिल की इलस्ट्रेशन आप सबको नजर आ रही होगी, अगर आपको इसको थोड़ा सा जूम कर लें तो आपके लिए अच्छा है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जर्नल गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा हूं। एज आई सेड, all these works will be performed inshallah in practical form and after, देखें अब मिसाल के तौर पे जर्नल के ऊपर हम तकरीबन 2 वीक्स जो है वो लगाएंगे, 2 वीक्स जो है वो इसके ऊपर इस एक्टिविटी पे लगेंगे। तो आप सोचें, ना सिर्फ जर्नल आपको बनाना आ जाएगा, बल्कि आपको अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप ऐसा बेहतरीन याद हो जाएगा कि आप भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। इसी तरह जर्नल लेजर पे भी टाइम लगेगा। तो हर एक्टिविटी, और अगर मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूं तो कॉमर्स वाले जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप जिस वो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड a little bit about SLO, so my dear students, these 4 blocks will cover in SLO 2. These 4 blocks, 1, 2, 3 and 4, these 4 blocks will be covered in SLO 2. If the SLO 2 weightage is 100%, suppose, then these 4 blocks have approximately 60 to 70% weightage. It means, and the total weightage of SLO2, anyone knows the total weightage of SLO2 in total syllabus? You have total 5 SLOs. What is the weightage of SLO2? It is 30%. And these 5 blocks will be covered. These 5 blocks will be covered in SLO4. And what is the weightage of SLO4? Again, it is also 30%. So 30% will be covered in accounting cycle SLO2, and 30% accounting of your total SLO will be covered in SLO4. It means the student who studied really well, what if he studied SLO2
and SLO 4, then 60% preparation have done of the total SLO. तो अभी ये सेट जस्ट 5% थ्योरी, 6%, 8% थ्योरी ज्यादा नहीं है, लेकिन थ्योरी है जरूर। वो तमाम स्टूडेंट्स जो ओ लेवल से आए हैं उन्हें तो पता है कि थ्योरी आती है, ठीक है, लेकिन थ्योरी आएगी, ये बात समझ लीजिए आप। अगर हम यहाँ पढ़ रहे होते जनाब BIE के, आपको पता है AKHSS में BIE की भी क्लास होती है कॉमर्स की, वो अगर आप वहां BIE में बैठे होते तो थ्योरी पे इतना एम्फेसाइज नहीं होता, थ्योरी पेपर में इतनी नहीं आती है BIE में, लेकिन एक ही UEB में माय डियर स्टूडेंट्स थ्योरी आती है और तकरीबन हर सवाल में आती है। अब अगर एक क्वेश्चन की वेटेज 10 है टोटल, तो 10 में से 2 मार्क्स की थ्योरी, कहीं पूरे 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। तो हम पेपर्स को, मैंने मॉडल पेपर जो है वो अपलोड कर दिए हैं पैडलेट पे, प्लीज आप उसको विजिट करें और देखें, और इंशाल्लाह हम पेपर्स को डिस्कस भी करेंगे। बट अभी तो हम फर्स्ट SLO डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हमें ये सारी चीजें कवर नहीं हो सकती। सब्जेक्ट न्यू होने की वजह से देयर आर नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस, जिसकी वजह से मैं SLO को कंप्लीट डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं इससे आपको चीजें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। Okay, my dear students, so after making journal entries in journal and ये हमने जर्नल को किस फंक्शन में कवर किया था, जल्दी से बताएं। किस फंक्शन में हमने जर्नल को कवर किया था? रिकॉर्डिंग में। नहीं मेरा बेटा, अरमान क्लासिफाइंग में नहीं, अरमान जमील क्लासिफाइंग में नहीं, इसको हमने रिकॉर्डिंग में कवर किया था। और मैं आपको कहता रहा कि आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करें, आपने किया नहीं बेटा। ओके, इसी तरह जर्नल एंट्रीज को कहां पोस्ट करना है? जर्नल लेजर में। क्लासिफाइंग, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, क्या आ गए? समराइजिंग। ठीक है, अब ये सब चीजें बनानी है, एक एक लाइन कहने की कोशिश करता हूं। जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर हर चीज के बारे में इंडिविजुअली जानने के लिए जर्नल लेजर बनाया जाएगा। एक लाइन और एडिशनल कहता हूं इसके ऊपर, इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द टोटल अमाउंट you have paid your employees as a salary expense, journal ledger will help you to determine that amount. If you wanted to know that how much amount is receivable from the customers, journal ledger will help you to determine this amount. Yes, देखें बहुत आसान लफ्जों में कहता हूं अबीर की बात, आपने बिजनेस में होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस को यहां रिकॉर्ड कर लिया। आपने कहा कभी कैश आया, कभी बिजनेस में कभी कैश गया, कभी फर्नीचर खरीद के लाए, बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई ना। हर ट्रांजैक्शन ने कभी कैश को इंक्रीज किया, कभी कैश को डिक्रीज किया। ठीक है, इसी तरह फर्नीचर इंक्रीज हुआ, आपने मर्चेंडाइज खरीदी, बेची, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा। ये सारे काम करने के बाद अब आप जानना चाहते हो कि हाउ मच कैश यू हैव राइट नाउ, देन यू विल प्रिपेयर जर्नल लेजर। जर्नल लेजर हर अकाउंट, हर चीज की अलग अलग डिटेल बनाता है। कैश की अलग डिटेल, सैलरी एक्सपेंस की अलग डिटेल, रेंट एक्सपेंस की अलग डिटेल, यूटिलिटी एक्सपेंस की अलग डिटेल, सेल्स की अलग डिटेल, परचेज की अलग डिटेल, ओनर ने बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट किए उसकी अलग डिटेल। इसका मतलब है जर्नल लेजर हमें एक एक अकाउंट की इंडिविजुअल डिटेल प्रोवाइड करता है। एंड आफ्टर मेकिंग जर्नल लेजर, with the help of journal ledger, we prepare a trial balance. And why we prepare trial balance and what is trial balance? Trial balance, we prepare trial balance to check the mathematical, arithmetical accuracy of our recorded items in journal and journal ledger. Yes, it is the phase of summarizing. Aman, you are up to the mark, but try to understand what is trial balance. I said trial balance is for the purpose of checking accuracy, arithmetical accuracy. ठीक है हफ्सा, देखिए हम ये बनाएंगे ना, जब हम बना रहे होंगे तो उस वक्त मैं दोबारा बताऊंगा ट्रायल बैलेंस क्या होता है। बट अभी आपको अगर अंडरस्टैंडिंग के लेवल का 1 भी क्लियर हो जाए और आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल, तो ये इनफ होगा हमारे लिए। बट अल्लाह के हुक्म से ये अंडरस्टैंडिंग का लेवल 5 तक जाएगा और जरूर जाएगा। ठीक है,
Okay. After making trial balance as per your SLO, please देखिए मैंने ये ग्रीन एरो बनाया है, अगर आप अपने SLO में देखेंगे ना तो वहां पर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस वहां मेंशन है कि प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप अपने SLO में देखिएगा। बट जब आप अपने बुक का पेज देखेंगे, पेज नंबर 3, वहां आपको ये सारे स्टेप्स नजर आएंगे और शायद इसके अलावा एक आध और भी नजर आ जाए। ठीक है, दोबारा कहता हूं अपनी बात। तो अब ये इनके बारे में थोड़ा सा एक एक लाइन कहते हुए आगे बढ़ते हैं। आयशा अब्दुल गफार said we can say list of all journal ledgers. yes exactly, वो तमाम अकाउंट के नाम जो हम यहाँ लिखेंगे जर्नल लेजर में, ठीक है, हर अकाउंट की अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी, उन तमाम अकाउंट का नाम, उनकी अमाउंट हम उठाकर लिख देंगे ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एक ऐसी चीज जिसमें हम ट्राई करेंगे, ट्रायल करेंगे, जैसे और ट्रायल करके हम चेक करेंगे। देखें ट्रायल का मतलब ही क्या है, चेकिंग। आप लोग क्रिकेट के ट्रायल्स देते हैं, आप लोग स्पोर्ट्स में मुख्तलिफ एक्टिविटीज के ट्रायल देते हैं और फिर आपको सिलेक्ट किया जाता है, तो बिल्कुल ऐसे ही ट्रायल है। ओके, आई थिंक अब ये क्लियर हो गया। हम अगर ट्रायल बैलेंस को आज ही इतना डिस्कस कर लेंगे तो जब मैं ट्रायल बैलेंस पढ़ाऊंगा उस वक्त हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आई थिंक हमें अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलना चाहिए। मेक एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज बनती हैं कब, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, जब आपको पता चलता है कि आपने लास्ट मंथ का यूटिलिटी का बिल तो पे ही नहीं किया, तो आप उसको एडजस्ट करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जब आपको पता चलता है कि आपने लास्ट मंथ का अपने एम्प्लॉयज को अभी सैलरी पे ही नहीं की, आप उसे एडजस्ट करते हैं, तो उसके लिए आप कौन से एंट्रीज बनाते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज। ये हम पढ़ेंगे SLO 4 में बहुत डिटेल में। ठीक है, ओके, एरर्स नहीं है बेटा, ये एडजस्टमेंट है, फिलहाल अभी एडजस्टमेंट की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद फिर आप दोबारा से एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सही है, हाँ। और अब जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो बनता है इन एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करने के बाद। यानी अगर आपने इस ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एक्सपेंस 1 लाख रुपीस दिखाया हुआ था और आपने एडजस्टमेंट में 20,000 रुपीज सैलरीज एक्सपेंस और रिकॉर्ड किया, तो अब आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 1,20,000 सैलरीज एक्सपेंस दिखाएंगे, हर अकाउंट को अपडेट करेंगे और अपडेट होके एडजस्टमेंट से वो आ जाएगा कहां, एक नए ट्रायल बैलेंस में, विच इज नेम adjusted trial balance. After making adjusted trial balance, with the help of adjusted trial balance, we will prepare financial statement. And what are financial statement? Alhamdulillah, you know very well. Financial statements are income statement, which is also called profit and loss statement, balance sheet, which is also called statement of financial position, and cash flow statement. After making financial statement, my dear students, अच्छा आपके SLO में यहां पर खत्म हो जाता है, इसके बाद आपके SLO में और कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यानी आपके SLO 1 की बात कर रहा हूं, SLO 1 में इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम कुछ क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हैं। क्लोजिंग कौन से अकाउंट की होती हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट मेरी बात से एग्री करेंगे, एक्सपेंस और रेवेन्यू की, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, इसलिए बिल्कुल इससे परेशान ना हो। और आखिर में बनाते हैं पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, यानी एक्सपेंस और इनकम को क्लोज करने के बाद जो ट्रायल बैलेंस बनता है उसको कहते हैं पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो ये दोनों पॉइंट आई नो कि थोड़े से डिफिकल्ट हैं, क्योंकि अभी स्टूडेंट को आइडिया नहीं है कि व्हाट इज एक्सपेंस, व्हाट इज रेवेन्यू, बट आई एम फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ योर SLO। अगर आप अपने SLO को देखेंगे, जो मैंने अपलोड भी किया हुआ है, आपसे शेयर भी किया है, तो उस SLO की जो सीक्वेंस है पढ़ाने की, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, उसकी वजह से थोड़ा सा ये आपको टफ टाइम देगा, बट डोंट वरी, इंशाल्लाह मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। जैसे
अब बताएं, आवाज आई? ओके, चलें कंटिन्यू कर लेते हैं। पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम होती है, मेरी समझ से बाहर है। चलें, ओके, थैंक यू सो मच। बस 2 मिनट दीजिएगा मुझे, ज्यादा नहीं। टाइमिंग ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, जरा इसको डिस्कस करते हैं। टाइमिंग ऑफ अकाउंटिंग साइकिल क्या है? द अकाउंटिंग साइकिल इज स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। वो अकाउंटिंग पीरियड आ गया जो मैंने डिस्कस करना है। देखिए, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है कि ये 4th यूनिट है आपका। यू गाइस आर वेरी मच टायर्ड, बट थोड़ा सा सुन लें, यकीन करें, बस बहुत थोड़ा सा। Accounting cycle is started and completed within an accounting period. Accounting cycle start होती है और complete होती है एक particular accounting period में। The time in accounting period क्या है, उसको एक लाइन में define कर रहा हूँ। The time in which financial statements are prepared. फिर दोबारा कह रहे हैं, अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होती है और कंप्लीट होती है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या है? वो द टाइम इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। Okay, accounting periods vary and depend on different factors. However, the most common type of accounting period are two. और वो क्या है? जल्दी से मेरे बच्चों को देख लो, कैलेंडर ईयर और फिस्कल ईयर। मुझे पूरा यकीन है तमाम साइंस के स्टूडेंट भी फौरन समझ जाएंगे। फातिमा, आर यू देयर? जरा देखिएगा फातिमा, ये मैं क्या कह रहा हूँ। देखें देखें, कैलेंडर ईयर सब बच्चे जानते हैं। Calendar year starts on 1st January and ends on 31st December. If a business follow calendar year, it means business will prepare its financial statement. Business will follow calendar year for its accounting cycle. पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर 31 तक बिजनेस अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, लेजर में पोस्ट करेगा, ट्रायल बैलेंस बनाएगा, एडजस्टमेंट बनाएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। कब से कब तक के बनाएगा प्यारे बच्चों? फ्रॉम जनवरी 1 टू दिसंबर 31। इट मींस बिजनेस इज फॉलोइंग विच पीरियड? बिजनेस इज फॉलोइंग विच अकाउंटिंग पीरियड? फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्ड होता रहेगा आयशा पूरे साल, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होंगे एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है फातिमा, क्लियर हो गया? मैंने आपका सवाल पढ़ लिया था। फातिमा बताइए, आपको मेरी बात क्लियर हुई? फाइनेंशियल डेटा, बिल्कुल आ रहा हूं मैं उस पर। शुएब आ रहा हूं मैं आपकी बात पे, रुक जाइए, पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। आयशा, आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया। आप लोग क्वेश्चन तो करते हैं, मैं जवाब देता हूं, बट आप रिप्लाई नहीं करते। कहा बिल्कुल मैं ये सब बातें करूंगा, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा किया करें। साइंस के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, हमें उन्हें भी समझाना है। कैलेंडर ईयर क्या होता है? जो कि जनवरी 1 से स्टार्ट हो, दिसंबर 31 को खत्म हो। जनवरी 1 से लेके दिसंबर 31 तक तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, जर्नल लेजर में पोस्ट होती हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है। दिसंबर 31 को ट्रायल बैलेंस बनता है और दिसंबर 31 को विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, इफ अ बिजनेस फॉलो this time period, it will be called business is following calendar year. अब बात करते हैं, अगर बिजनेस फॉलो कर रहा है, बिजनेस, लेट सपोज बिजनेस अपना ईयर स्टार्ट करता है महीने के किसी भी दिन अदर देन जनवरी, मसलन जुलाई 1 मेरे बच्चों, जो अब यहाँ क्या लिखा है? फॉर दोज बिजनेस विच फॉलो द फिस्कल ईयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एनी मंथ अदर देन जनवरी। मतलब क्या हुआ? गौर से सुनिएगा। एक बिजनेस अपना ईयर स्टार्ट करता है जुलाई 1, तो जुलाई 1 से 12 मंथ्स कब कंप्लीट होंगे? नेक्स्ट ईयर के जून 30 को। अच्छा, फिर चेंज करता हूँ एक एग्जांपल। एक बिजनेस अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करता है, अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट करता है कब? फातिमा सुनिएगा, मोइस आप हैं हमारे साथ? मोइस साथ दीजिएगा जरा प्लीज। एक बिजनेस अपना अकाउंटिंग स्टार्ट करता है अप्रैल 1। कब स्टार्ट करता है? अप्रैल 1। तो अब बताएं, अप्रैल 1 2020 को एक बिजनेस ने अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू किया और वो फिस्कल ईयर फॉलो करेगा, तो उसका फिस्कल ईयर कब खत्म होगा? जल्दी बताओ। शाबाश अक्सा, वेल डन। ताहा, वेल डन। मोइस और फातिमा का जवाब नहीं आया, फातिमा का जवाब आ गया, वेल डन, वेरी गुड। इसका मतलब है मार्च 31 को उसका अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाएगा। तो फिस्कल ईयर कभी भी शुरू हो सकता है और कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गए दो मोस्ट कॉमन। देखें, आप कुछ बच्चों ने ना सवाल किए थे, मैं उनके जवाब दे दूं जल्दी से। कुछ बच्चों ने क्या सवाल किया मेरे प्यारे बच्चों? उन्होंने कहा सर
अकाउंटिंग पीरियड आपने बताया मोस्ट कॉमन भी तो लिखा, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आर 2। तो अब इसके अलावा और भी होते हैं यकीनन जो हमने नहीं बताया आपको, और वो क्या होते हैं? 3 मंथ्स का भी हो सकता है अकाउंटिंग पीरियड, 1 मंथ का भी हो सकता है अकाउंटिंग पीरियड, 9 मंथ्स का भी अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम अकाउंटिंग पीरियड कितना होगा? मैक्सिमम अकाउंटिंग पीरियड कितना होगा? जल्दी से जवाब दें, शाबाश अबीर। मैक्सिमम अकाउंटिंग पीरियड कितना हो सकता है? एक्सीलेंट, 1 ईयर, 12 मंथ। सर ये मैक्सिमम की लिमिट क्यों लगाई है? क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस के 1 साल के बाद भी परफॉर्मेंस चेक नहीं करेंगे, आप ये नहीं जानेंगे कि आइदर योर बिजनेस इज इन प्रॉफिट और लॉस, तो फिर आप करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव मेजर कब लेंगे? समझ रहे हैं? नहीं, एक्सीड नहीं कर सकते हम। और क्यों नहीं कर सकते मेरा बच्चा? देखें, आप हर महीने अपने बिजनेस का अकाउंटिंग साइकिल चलाएं, हर महीने के एंड पर पूरा कैलेंडर ईयर भी ना बने, आप एक महीने में पूरी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करें, ठीक है, और फिर उससे लेजर बनाएं, ट्रायल बैलेंस बनाएं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से वहां आपको क्या पता चलेगा? बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस। अब आप वो प्रॉफिट लॉस जानने के बाद काबिल हो जाएंगे क्या करने के? करेक्ट डिसीजन लेने के। लेकिन अगर आपने 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, तो आप का बिजनेस हो सकता है फिर मजीद ऑपरेट होने के काबिल ही ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है आप सब मेरी बात समझ गए। तो इसका मतलब है ये क्वार्टरली भी हो सकता है, क्वार्टरली मींस 3 मंथ्स, ठीक है। ये 4 मंथ्स का भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, बाय एनुअली भी हो सकता है, और ये एनुअल हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। बिल्कुल इवन भी ये, इट कैन इवन बी ईच मंथ। जी अभी मैंने भी यही कहा कि हर महीने भी बन सकता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि ये क्लियर है आप लोगों को। अब हम एक छोटी सी वीडियो आपको शेयर करते हैं 1-1.5 मिनट के, वो देख के फिर क्लास ऑफ कर देंगे, सही है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया, जज़ाकुमुल्लाह। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। 1 मिनट के लिए रुकिएगा, मैं आपसे शेयर करता हूँ आप दूसरी स्क्रीन। मैं साइंस के स्टूडेंट्स को फिर यही कहूँगा कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे बताएं, मुझसे शेयर करें, मैं कुछ ना कुछ हल निकालूंगा, अल्लाह के हुक्म से हम मिल के डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक छोटी सी चीज़ है, अगर आप इसे देख लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। वीडियो की आवाज़ आ रही है, ये देख लीजिएगा, अभी मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। An accounting cycle consists of the traditional procedures performed to record business events and transactions in a company's accounting records. The accounting cycle begins when a transaction occurs and finishes when the financial statements are prepared and the books are made ready for the next accounting period. Traditionally, the accounting cycle consisted of 9 steps. 1. Financial data associated with the transaction is collected and analyzed to determine how it should be recorded in the accounting records. An accounting cycle consists of the traditional procedures performed to record business events and transactions in a company's accounting records. The accounting cycle begins when a transaction occurs and finishes when the financial statements are prepared and the books are made ready for the next accounting period. Traditionally, the accounting cycle consisted of 9 steps. 1. Financial data associated with the transaction is collected and analyzed to determine how it should be recorded in the accounting records. 2. The data is entered into the general journal. 3. Entries are posted to the general ledger. 4. An unadjusted trial balance is prepared to make sure total debit balances equal total credit balances. 5. Appropriate adjusting entries such as accrual adjustments and periodic depreciation and amortization are made to the unadjusted trial balance. 6. The adjusted trial balance is prepared. 7. The adjusted trial balance is used to create financial statements such as the income statement, balance sheet, and statement of cash flows.
8. The books are closed. This involves zeroing out the income and expense accounts with the difference going to retained earnings as either income or loss. 9. A post-closing trial balance is prepared to check the accuracy of the closing entries. These steps are considered traditional because they are a holdover from when accounting and bookkeeping was a manual process. Sophisticated accounting software has made many of these steps obsolete. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया। जज़ाकुमुल्लाह, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। आयशा का एक सवाल था, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। मेरी तरफ से जो लोग लीव कर रहे हैं उन्हें फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और आयशा की क्वेश्चन का आंसर देता हूँ।